ڈاکٹر فاروق عبداللہ کہتے ہیں کہ کسانوں کی عظیم قربانیوں کے نتیجے میں مرکزی حکومت متنازع زرعی قوانین واپس لینے پر مجبور ہوئی۔ نیشنل کانفرنس کے صدر کا کہنا ہے کہ کسانوں جیسی قربانیاں ہی آرٹیکل 370 اور 35A کے دوبارہ واپسی کا باعث بنیں گی اور حکومت خصوصی موقف کی بحالی کے لیے مجبور ہو جائے گی۔ مرحوم شیخ محمد عبداللہ کے 116ویں یوم پیدائش کے موقع پر پارٹی کارکنوں کے ایک بڑے اجتماع سے فاروق عبداللہ نے خطاب کیا۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ حال ہی میں بے گناہ لوگوں کا قتل کیے جانے کے واقعات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایسے اور بھی کئی واقعات رونما ہو سکتے ہیں۔ فاروق عبداللہ نے عامر کی لاش اہل خانہ کو واپس کرنے کی مانگ کی۔ NC کے صدر نے کشمیر میں میڈیا پر عائد پابندیوں کے بارے میں بھی بات کی۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے NC کے نائب صدر عمر عبداللہ اور دیگر سینئر لیڈروں کے ہمراہ نسیم باغ سری نگر میں واقع اپنے آبائی قبرستان میں مرحوم شیخ محمد عبداللہ کے لیے فاتحہ خوانی کروائی۔ رتو پتہ یل 700 زیادہ کسان مود ان 500 بیل کسانن ہز واپس نین تم 3 بلو تمو کسانوں قربانی دت استماس تتھا پہ قربانی دن پن حق واپس انہ یہ یاد اس یہ وعدہ کورمت کہ 67 تو 35 اناؤ واپس یہ ریاست اناؤ واپس یہ قربانی دن تک تیار اس لیے گھبراؤن گھس ونان ہے خبر کار یہ ہو تمہیں چھ ون چان صرف یہ اوقات تمس خدایس تھاپاس کرمت ہمت آسس امید آسس کہ بہت صحیح رت پہ انشاءاللہ اس گھو کامیاب یت من ست ونو پان ون پھل اتحاد تو اتفاق بڑا ضروری ہے اتحاد تو اتفاق پھل لکن تمن جوڑن من گھن تیل بن جماعت بنی یل ساری یت رز لمو اکوٹے تیلی ترو اپور یہ ضروری اگر یہ آواز تلان تم کوشش دباؤن تم تو سان اخبارن میڈیاس کت کن تمن پہ دباؤ اگر تم کھانا چیز زور زور لکھان سیدے تھانس میں بلاوان یہ حالت سان تان ونان یہ آزاد یہ تیز آزادی کتھی چھن لوگ ہسان کی کرت مارک تم 3 بے گناہ یہ لوگوں شور کور یہ چیز اتحاد تو اتفاق تو مضبوطی یہ لوگوں آواز تج تمی گئی آئی پھر ان جسم واپس دن کہ تم ہکن تم پانے طریقہ دفن کرت ون تہ اخ انسان بچار اس ون تہ قبر من تم سے مول موج پیاران تک گولس من عمر صاحب گومت تہند گھر ون چان تہ کورک نا واپس کتہ آسان اتھے پہ بے گناہ مارمت حساب یہ اس لیے ہمو حساب دے ہوتے ہیں حساب تم نش بچن شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سری نگر نے آج اپنا 39واں سالانہ یوم منایا۔ اس سلسلے میں سری نگر کے SKICC میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مہمان خصوصی کے طور پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جلسے سے خطاب کیا۔ یہاں مہمان کی حیثیت سے شریک اسکمز کے گورننگ باڈی کے چیئرمین بھی حاضرین میں مخاطب ہوئے۔ انہوں نے اسکمز انتظامیہ کے کاموں کی ستائش کی۔ طب و صحت کے اس بڑے ادارے کی طرف سے جموں کشمیر میں صحت عامہ کی دیکھ بھال اور کووڈ پر کنٹرول کے امور کی بھی خوب سراہنا کی گئی۔ LG نے ڈاکٹروں سے کہا کہ وہ نئے ویرینٹ اومیکرون کے حوالے سے لوگوں میں آگاہی پیدا کریں۔ دہلی ایمس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رندیپ گلیریا نے اپنے خصوصی خطاب میں کہا کہ اگر لوگ کووڈ سے بچاؤ کے بنیادی SOPs پر عمل کریں تو اومیکرون ویرینٹ سے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس دوران LG منوج سنہا نے اسکمز کے مختلف پروجیکٹ کا افتتاح بھی کیا۔ یہ افتتاح کیا کالج آف پیرامیڈیکل سائنسز اور ایڈوانسڈ پیڈیاٹرک سینٹر اسکمز میں شروع کیا گیا ہے۔ یہاں اسکمز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر AG آہنگر کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ آپ سب کو پتا ہے، مجھ سے زیادہ پتا ہے کہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے، اور جس نئے ویریئنٹ اومیکرون کی چرچا ہو رہی،
लोग कह रहे हैं कि दस्तक दे रहा है। बहुत से देशों ने अपने बॉर्डर को सील करने का काम शुरू कर दिया है। ऐसा विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ये वेरिएंट बहुत बड़ी संख्या में म्यूटेशन दिखा रहा है। इस वेरिएंट के निदान का सबसे स्वीकृत और आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला तरीका मैं समझता हूं RT-PCR टेस्टिंग है। इसलिए मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि जितनी हमारी क्षमता है उस क्षमता का पूरा उपयोग इस स्कीम्स को करना चाहिए। वैक्सीनेशन के अलावा ट्रैकिंग, टेस्टिंग और आइसोलेशन पर ध्यान रहे, इसमें आप सब प्रशासन की मदद करिए। लोगों को जागरूक बनाना हो, सीनियर डॉक्टर से भी मैं आग्रह करूंगा कि सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म हैं उन पर अगर आपकी ओर से बात कही जाएगी कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करें, मुझे लगता है कि संक्रमण को रोकने में हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। प्रशासन की ओर से हम प्रतिबद्ध ढंग से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी ओर से कोई बात कही जाती है तो मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट समाज पर ज्यादा होता है। However, this pandemic, as we've all seen, has impacted all walks of life. It's not only healthcare, it's education, it's trade, it's travel, it's economy, it's even politics. Though I have been a victim of political, regional and administrative apartheid of worse order, I stood firm on the ground for the pace and progress of this institution and develop any further to whatever extent possible relentlessly. So because just I can carry the burden, that does not mean that it has been light or it has not been heavy. Every loss gained for me has inspired me to do what I should try to do the next. दुनिया भर में फैले कोविड-19 ने लाखों लोगों की जानें ली और कई लोग अभी भी इस बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। हिंदुस्तान में भी इस बीमारी ने कोहराम बर्पा कर दिया और इंसानी जानों का काफ़ी ज़िया हुआ। जम्मू कश्मीर भी इस बीमारी की जद में आया और कई लोगों को अपनी जानों से हाथ धोना पड़ा। यूटी इंतज़ामिया वबा की वजह से यतीम हुए बच्चों और बेवाओं को माली इमदाद फराहम करने के साथ साथ आगे ज़िंदगी चलाने में इन्हें काफ़ी मदद फराहम कर रहा है। पेश खास रिपोर्ट। दिसंबर 2019 में फैली कोविड वबा से जम्मू कश्मीर भी बच नहीं पाया। यहाँ भी इस बीमारी ने कहर ढाया। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोविड के चलते गुज़िश्ता जुमे तक जम्मू कश्मीर में 4,479 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। वादी में 2,294 और जम्मू खित्ते में 2,185 अफराद की मौत हुई। सबसे ज्यादा अमवात जिला जम्मू में हुई, जहां 1,157 लोग फौत हुए। कोविड से फौत हुए अफराद में बेशतर ऐसे लोग थे जो अकेले अपने कुनबे के कमाऊ थे और इसी वजह से उनके बच्चे और बीवियां बेसहारा हो गई। ऐसे कुनबों के हालात जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए यूटी हुकूमत ने संजीदा इक़दाम शुरू किए और सक्षम स्कीम को लॉन्च करके इन बेसहारा लोगों की मदद की शुरुआत की। सरकार ने फौत हुए अफराद के अहले खाना को हाल ही में फीकस 50,000 रुपए फराहम करने का फैसला किया है। पिछले दिनों ऑनरेबल एलजी साहब ने सक्षम स्कीम करके स्टार्ट की थी, विच इज़ बीइंग रन बाय सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। उसके तहत जो लेडीज़ जो अगर कोई विडो रह गई थी ब्रेड विनर की डेथ पे तो उसको पेंशन मिल रही है और उसके बच्चों को जो 12th तक बच्चे हैं उनको 20,000 रुपया साल का स्कॉलरशिप और जो 12th से ऊपर पढ़ रहे थे उनको 40,000 रुपया स्कॉलरशिप जो है वो सोशल वेलफेयर महकमा जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा आपने देखा होगा 29 तारीख को ही स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का ऑर्डर आया है जिसमें जो भारत सरकार ने ऑर्डर किया था कि 50,000 रुपया पर डेथ जो है वो फैमिली को दिया जाएगा, जो डिपेंडेंट होगा उसका, वो केसेस भी हम प्रोसेस करें। एक तरफ सरकार कोविड से बेसहारा हो चुके लोगों की मदद के लिए कई इक़दाम कर रही है, दूसरी जानिब मुख्तलिफ रज़ाकार तंजीमें भी ऐसे लोगों के हालात जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए अपनी बिसात भर काविशों में मसरूफ हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी ऐसी तंजीमों में शामिल है जो कि बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए आगे आई है। जम्मू रेड क्रॉस के एजाजी सेक्रेटरी विनोद मल्होत्रा के मुताबिक गुज़िश्ता 2 बरस के दौरान सोसाइटी ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और जिला इंतजामिया के ताउन से
ऐसे कुनबों की निशानदही करके उन्हें माली और दीगर किस्म की इमदाद फराहम की। किसी के माँ बाप चले गए हैं तो बच्चे जो है अनाथ हो गए हैं, कुछ हो गए हैं, तो उनको सक्षम स्कीम के तहत सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से काफ़ी हेल्प हो रही है। और उसके अलावा रेड क्रॉस में जब वो अप्रोच करते हैं, जितनी हमसे बन पाती है हम उनको हेल्प करते हैं और बाकी उनको प्रॉपरली गाइड करते हैं कि किस तरीके से वो सोशल वेलफेयर या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को अप्रोच करें ताकि उनको इसका बेनिफिट मिल सके। प्रॉपरली हम उनको गाइड करते हैं। और बड़े बच्चे ऐसे आए जो कह रहे हैं कि हमारे ड्यूरिंग कोविड हमारे पापा का बिजनेस खत्म हो गया, कुछ हो गया, उनके लिए हमने कॉलेजेस को, जैसे हमारे पास स्कीम है कि रेड क्रॉस फंड से उनकी पढ़ाई जो है कंटिन्यू की जा सकती है, तो हम उनकी फीस एग्जम्पशन के लिए हमने बड़े बड़े लोगों को ये लेटर लिखी और उनकी फीस एग्जम्पशन हो भी की। आम लोग सरकार और गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से किए जा रहे ऐसे इक़दामात की खूब सताइश कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि आम लोगों को भी इस अजीम काम के लिए अपना अहम रोल निभाना होगा ताकि कोविड से फौत हुए अफराद के अहले खाना मुसीबतों में न उलझे। 10,000 है या 50,000 है, जो भी अमाउंट है, मैं समझता हूँ एक इंसेंटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से शुरू हुआ है और ये ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम जो है जम्मू कश्मीर में आनी चाहिए। ये जो ढांचा और एक जनरेशन हमने खो दी है उसकी भरपाई जो है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से ही होगी। और ये देखते हुए जो यहाँ के सरमायादार लोग हैं, जो बड़ी बड़ी NGO चलाते हैं, उनको भी आगे आना चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ हाथ मिलाना चाहिए ताकि वो जो नेग्लेक्टेड बच्चे हैं या फैमिलीज हैं, रूफलेस हैं, छत नहीं है इस सर्दी की विंटर के सीजन में, उनको रिहेबिलिटेट करें। कोविड से फौत हुए अफराद के अहले खाना को हुकूमत की तरफ से फीकस 50,000 रुपए इमदाद देने के फैसले को अमलाने की कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। हुकूमत के मुताबिक जिला इंतजामिया की टीमें बजाते खुद दौरा करके ऐसे कुनबों की निशानदही करेंगी और जो माली इमदाद मुतासरीन को दी जाएगी वो सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट।